کیوں نہ ہوگا. اور ندا کچھ خود بتا رہی ہے کہ شینڈی شاہ اور فائزہ کے بھی تعلقات ہیں اپنے جنسی تعلقات. وہ ندا خود اس کو بتا رہی ہے کہ شینڈی شاہ کو کہہ رہی ہے تم میری ماں کے ساتھ بھی لگے ہو اور میرے ساتھ بھی. یہ ویڈیو آڈیو موجود ہے. تو اس کو جھٹلا سکتے ہیں یہ سارے. طاہر کو تو یہ تھا کہ میں خاندانی گدی کو مستحکم کر دوں اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو رہا تھا, عملہ کر رہا تھا اور گندی گفتگو کرنا, یہ آپ کا شیوا ہے. گندی گفتگو ہم کر رہے ہیں, گندے کام کون کر رہے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں آپ کا, اور کبھی تھا بھی تو کک آؤٹ کیے گئے ہیں. اور تیرے جیسے خبیث عقیدہ رکھنے والے سے میں نے سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ ہاں جی, ہاں تم کو تو ہم پہلے فاسق سمجھتے ہیں, تم سب مرزائیوں کو, تمہارے خلیفہ سمیت. دیکھیں شہزاد صاحب, ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ دیکھیں آنکھوں دیکھی مکھی تو نہ کھائیں. خلیفہ کی باتیں یوٹیوب پہ سنیں. اگر آپ ایمان والی اپنے اندر صفت رکھ کے سنیں گے اور اس کے باوجود بھی آپ اس کو چندے میں پیسے دیں گے تو کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں ثواب کے بجائے. اپنی طرف سے آپ ثواب کر رہے ہوں گے لیکن وہ گناہ کے اس میں جا رہا ہوگا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو ایک بچی کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو خود پیش کرتی رہی ہو, تم چپ کر جاؤ. آگے ایک دفعہ بھی خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, چپ کرو, بکواس بند کرو, میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں. خلیفہ اس کے ساتھ پورے آرگومنٹ کر رہا ہے. اب بھی اگر آپ یہ دیکھتے ہوئے بھی آنکھوں دیکھی مکھی کھا رہے ہیں تو آپ ذرا اپنا خود احتساب کریں نا, ویڈیو دیکھیں, اپنا احتساب کریں. یہ تو پاکستان کی حد تک بات رہتی تو پھر تو چلو ٹھیک تھا, آپ کی مانی جاتی, آپ کی سنی بھی جاتی اور آپ لوگوں نے ڈنڈے کے زور پہ سارا کچھ کر لینا تھا. مگر بات آپ کے ہاتھ سے اب نکل چکی ہے بہت آگے, اور اب ڈر ہے کہ کہیں جو نا اور پانسا نہ پلٹا جائے. یہ سارے خوف ہیں جو دلوں پہ جو نا چھائے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے میرے بھائی, ہم اپنی قبر کی تیاری کرتے ہیں. جی جی, آپ نے میری قبر میں جانا ہے یا میں نے آپ کی؟ بالکل آپ اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. حقیقت دکھا رہے ہیں. دیکھیں سنیں, کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں. میری تھراپسٹ, ہر کوئی سائیکولوجسٹ کہے گا کہ ہر وکٹم کا ایک اپنا رسپانس ہوتا ہے. میرا رسپانس ہے کہ میں ڈاکٹر کی کر رہی ہوں, میں تھراپسٹ کی کر رہی ہوں, جو آپ نے میرا جس علاج شروع کیا اور وہ ٹاپ کی تھراپسٹ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے تم ایسی وکٹم ہو جو تم فریز کر لیتی تھی, تم اپنی حفاظت ہی نہیں. 1 سال کا بچہ مولیسٹ ہو رہا ہے اور پھر 8 سال کی عمر, نہیں مجھے ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. ہاں جب یہاں سے لندن سے جاتی ہے ہاں اپنے بابا سے جان چھڑا کے جاتے ہیں, واپس کیوں آتی تھی؟ واپس میں نے بتا دیا. پھر مجھے حسب اس وقت آپ مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایڈوکیٹڈ آدمی سے بات کر رہی ہوں یا کیا, کہ 1 سال کا بچہ کسی کے چنگل میں 8 سال سے ریپ ہو رہے, کئی ہفتے میں کئی مرتبہ ہو رہے. میں معاف ہو چکی تھی, میں آپ کو لکھ چکی ہوں کہ میں اتنی معاف تھی کہ کبھی میں نے اپنے لیے دعا تک نہیں کی تھی. ہاں وہ پنجرہ ٹوٹے یکم مارچ کو جب آخری دفعہ اس آدمی نے میرے سے خوشی چھیننے کی کوشش کی, پھر میں وہ پھٹی ہوں جیسے الٹی آتی. میں نے 2-3 خطوں میں لکھا ہے مجھے اس دن الٹی آئی ہے. اگر یہ پری پلان ہوتا تو میں نے اور اسی میں ہے کہ اب اس کو باقی تمہارا کوئی کام تمہارے سے کچھ نہیں ہوگا. اب تم بچ گئی ہو, چھٹ گئی ہو, اس سے نہیں ان کو سزائیں نہیں بنتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائیں نہیں بنتی آپ کے نزدیک؟ دیکھو سزا بنتی ہے جب جرم ثابت ہو جائے. اچھا پھر برٹش کورٹ فیصلہ کرے گی کس نے وہ کیا ہے جرم اور کس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور آپ کے بھی ساری جو آپ نے بھی باتیں کی ہیں وہ بھی آگے آئیں گی. کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ میں نے کیا کیا؟ بس ٹھیک ہے حسب آپ خود یہ پر نہیں, آپ خود اس معاملہ اس طرف لے کے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے میرا واٹس ایپ پہ بھی میسج وائرل کر ہو گیا ہے اور ساری دنیا میری سائڈ لے گیا. سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک بول رہی ہے, کم از کم کوئی تو بولے. نہیں سارے تنگ ہے اس نظام سے. یہ جو چھوٹا منافقوں والا نظام ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے تنگ ہے. چاندی نہیں
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ यकीन है ना, मुझे भी दिख रहा है कि गलत किया निदा ने। हाँ ठीक है फिर देखी जाएगी, फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर उसके जमाती निजाम जो तुम्हारा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के मुझे जो तुम्हारी तले करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो नहीं करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने है मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से होना चाहिए था। नहीं इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं, आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था बाकी जिंदगी में, वो गोबर से भी बदतर था, आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। अच्छा निकाल रहा हूँ, चलते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हाँ ये तो नहीं है कि एक टेरर की हुई है रब्बा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये नहीं कहते कि अत्तर भाई को मर्डर करवाए क्योंकि उस्मान जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त, क्या अवाम बातें करती हैं। आप इसको प्रोटेक्ट कर लें अपनी बीवी की वजह से। जी, तो वो कह रहे हैं कि अपनी बीवी की वजह से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी खलीफा जो है वो जन मुरीद है और अपने जो लफंगा साला है वो खलीफा के कंधे के पे चढ़ के औरतों का रेप कर रहा है, ये निदा कह रही है। तो ये पागल तो नहीं है निदा, खलीफा ने एक दफ़ा नहीं कहा कि तुम पागल हो, वो तो उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। मिर्जाइयों कब तुम्हें अकल आएगी, तो खुदा का अकल खौफ करें करो। इस आबादी निज़ाम के साथ तुम अपने आप को आप उस लड़की की आवाज से नहीं मस्ती पता करके चल रहे रहा, हो। बड़े भोले बन के दूसरों को आप बेवकूफ बना इसलिए रहे हैं, जमाते आपको महमूदिया आवाज के से नहीं पता खिलाफ चल रहा हैं बेचारी की क्या हालत हुई हुई है। कि आप महमूदी नहीं है, इसलिए आप जमाते महमूदिया के खिलाफ हैं, इसलिए आप इस तरह की बात, अगर आप महमूदी होते तो कभी भी ये इस तरह की ऑडियोज प्ले ना हाँ जी, करते। नहीं फिर तो मैंने अपनी जान माल इज्जत खलीफे पे कुर्बान करनी थी ना, कि मेरी इज्जत भी लुटो तुसी मौजे करो। तो वो इज्जत लफंगा से खोता मुराद साला है यही कर रहा है ना। कि इज्जत से मुराद है कि घोड़ी बन के रहो तो तेल दी बोतल हाथ से रखो। बिल्कुल, बेवकूफ गंदे लफंगा सोच खोता वाले साला गंदे यही कर रहा लोग है हैं ना, आप। खलीफा के ये कंधे पे खबीर चढ़ के सरकते औरतों आप को ही रेप कर कर रहा सकते हैं, जो अभी आपने बात की अपना सारा कुछ जाहिर तो कर दिया, और क्या करेंगे। शहजाद भाई आपने इसके तेल बाद की तो कुछ बोतल रह गया हाथ में अब। पकड़ी हुई है, सरों की तेल की बोतल हाथ में और घोड़ी बने हुए हैं। शर्म करें कुछ अकबर है। साहब। जो ये मिर्जाई घोड़ी ना बने तो इन ये इसको लोगों का निकाल कोई देंगे हाल जमात नहीं है, बस अपनी चंद चीजों की खातिर इन्होंने अपना ईमान बेचा हुआ है बस। ये देखिए, ये है अंधी तकलीदी, सब कुछ इसको सुना भी दिया है, वो वहीं पे पड़ा है, उसी मिर्जाई जो अपने मुझे पता कंधे लग पे गया ना औरतों कि से रेप आपकी करवा सोच रहा कहाँ है, तक कंधे गई पे है। चढ़ा के सोच एक अपने गंदी हाथ लफंगे में खोते फंसी साले हुई है, को, गंदगी से ये निकल उसी नहीं के रही पीछे बस। लगे हुए हैं। बात सिर्फ ये ये है है। मिर्जाई। अच्छा खुदा को भी गलती लग गई कि उसने मसीह के खलीफों का वादा नहीं किया था कहीं। आपका तो बस जो है ना वो सारे अंदाजे आपकी बयान तो से बात ही ये राज खोल देती है आप जुबान। आप आप अरे आप खुदा को भी कहें कि खुदाया तू भी अंधा है कि हमारे तो खलीफे बनने थे, तुमने आज से इस खिलाफ में हमारे खलीफों का वादा क्यों नहीं किया। मिर्जा जी जी खानदान के खलीफों का वादा कहाँ पे जी लिखा जी, हुआ है? बहुत 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 दफा कर लिया आपने, हाँ बड़ा जी, जबरदस्त आप महाज बिल्कुल। खड़ा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर अच्छा पा इन रहे आप, मर्दइयों के बिल्कुल दो खुदा बेवकूफ हैं, और एक खुदा गिरे ने हुए मिर्जा लोग साहब हैं। को उस आयत के तहत अल्लाह का 13वां खलीफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया, और एक इनका दूसरा खुदा है जिस कमेटी का नाम इन्होंने खुदा रखा हुआ है, वो भी उसी आयत के तहत कमेटी के जरिए खलीफे बनाता है। इनके दो खुदा हैं। ओहो हसद, क्या करें। अपने खलीफे को बाहर निकालें, डिबेट करें हमारे साथ आके। वो निदा से बात करनी थी, बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे देता अब उसने। हमसे तो आगे निकल बड्डू नहीं सकते, तो वहां इधर इधर उधर कहाँ जाएंगे। इधर ही बात कर खत्म कर ले, मैं तो और कहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में एक ग्रोह दज्जाल निकलेगा। आप वो ग्रोह दज्जाल हैं जो 1914 को निकला। अच्छा खलीफा अव्वल से आप इतना भागते क्यों हैं, डरते क्यों हैं उनसे।
उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा था आपको। अच्छा ये सुने मिर्जा साहब क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुनो। शहजाद खुर्रम तुमने तो कभी मिर्जा साहब को पढ़ा नहीं ना, सुनो। कहते हैं मेरी तबीयत कुछ ऐसे वाकया हुई थी कि मैं पोशीदा रहने को बहुत चाहता था और मैं मिलने वालों से तंग आ जाता था और कोफ्ता खातर होता था, यहाँ तक कि मेरा बाप मुझसे नौमीद हो गया और समझा कि हम में एक शबबाश मेहमान की तरह है जो सिर्फ रोटी खाने का शरीक होता है, और गुमान किया कि ये शख्स खलवत का आदी है और लोगों से वसी घर के साथ मेल जोल रखने वाला नहीं। सो वो हमेशा मुझे इस आदत पर गज़ब से और तेज़ कार धूं से मुलामत करता और मुझे दिन रात और ज़ाहिर और दरपर्दा दुनिया की तरक्की के लिए नसीहत किया करता था और दुनिया की आराइशों की तरफ रग़बत देता था और मेरा दिल खुदा की तरफ खींचा जा रहा था। ऐसा ही मेरा भाई मुझे पेश आया और वो इन बातों में मेरे बाप से मुशाबा था। बस खुदा ने इन दोनों को वफा दी और ज़्यादा देर तक जिंदा ना रखा और उसने मुझे कहा ऐसा ही करना चाहिए था ता तुझसे खसूमत रखने वाले बाकी न रहें और उनका इल्हा तुझको ज़रर न करे। नजमुल हुदा रूहानी खजान जिल्द 14 सफ़ा 51। हाँ तो कुछ ये शेयर आपके करें। मिर्जा जी ने लिखा है। वो बाप 1875 भाई के बाद सारे दो तो हुए हैं दोनों। दुनियादार थे। तो वो खबासत जो थी ना दुनियादारी की, उसी की शर्म तरफ कर उन्होंने लें कहा था तारक कि साहब, मेरा कुंबा दोबारा 1875 उसी खबासत के की तरफ बाद लौट दोनों जाए। की वफात हुई है, तो आपको अभी भी वो अर्ली नजर आ रहा है, जैसे अर्ली जवानी में सारे काम हो गए हैं। कुछ है शर्म के नहीं? कुछ पता भी है हालात का कि नहीं? तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मिर्जा साहब कह रहे हैं 40-45 साल उस मेरा उस कुंबा वक्त दोबारा उम्र हो खबासत चुकी की थी तरफ जब लौट फोत हुए जाए। हैं, तो आपको अभी भी वो अच्छे अर्ली उम्र के नजर आ रहे हैं। कोई बात करने वाली उम्दे मिर्जाई आप तो हैं बिल्कुल ही सोच कि से पैदल है। उसी मैंने कहा खबास खबीस अकीदा पे ये शम हैं पक्के, और उसी खलीफा को जो अपने कंधों पे औरतों से जना करवा रहा है उसको ये खुदा का बनाया खलीफा कह रहे हैं। ऐसे बेशर्म मिर्जाई हैं। आपको पता नहीं, आपकी बेवकूफी में आपके राज खुलते हैं। आप समझते कि आपने बड़े तीर मार लिए हैं, वो बल्कि आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। बेड़ा गर्क तुम्हारी मिर्जाइयत क्या कर रहे हैं? उनकी खबासतें निकाल के दिखा रहे हैं जो खबासतें तुमने ही बयान की तुम्हारी लोगों ने, कि ये एक खबीस तर्ज का ये ख़ानदान है जो खबासत का इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है, औरतों की इज्जतें लूटने का ये काम करते हैं। वो कहते हैं हम खुदा के खुदा बनाए हुए हैं। क्या ही बेवकूफी वाला दिमाग पाया है कसम से। कैसे बेशर्म कौम है, सब कुछ देखने के बाद फिर भी उसी खलीफा को कह रहे खुदा का बनाया हुआ है। वो सीसल होटल लाहौर से हजरत खलीफतुल मसीह ठक कादियान में एक इटालियन को क्यों लेके गए थे? मिसरूफों को लेके गए थे। जिम्मेदार अखबार ने जब शोर डाला कैबरे तो डांसर। उस हजरत खलीफतुल मसीह ठक ने उसको निकाल क्यों दिया था 2 हफ्ते के बाद? मिसरूफों को, जो सैसल होटल लाहौर की कैबरे डांसर थी, उसको मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद तुम्हारा मुस्लिम कादियान लेके गया था। उसे कैबरे डांस सीखना था उसने। ये तो खुद उसने बयान किया हुआ है। फिर खुद बयान किया पेरिस में मुझे नंगी औरतों को देखने का शौक था, ऐब वाला हिस्सा देखूं। शौक पूरा नहीं था हो रहा किसी तरीके से। फिर चौधरी जफरुल्ला खान जो आलमी अदालत इंसाफ के जज थे, वो सहूलतकार बने, वो मुझे लेके गए। और फिर खलीफा जी पूछ रहे हैं क्या ये नंगी हैं, यानी शौक पूरा हुआ कि नहीं अभी तक? ये तो तुम लोगों के खुद अपनी लिटरेचर में लिखी हुई बातें। उन्होंने कादियान में ईदगाह में खुतबा में ये बात बताई है तुम्हारे मुस्लिम मौद ने। कुछ शर्म करें, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? कहाँ लिखी है हमारे लिटरेचर में ये बात? बिल्कुल यही कहते हैं मिर्जा जी, कहाँ लिखी है? हाँ बिल्कुल, एक मर्द बन जाए एक औरत बन जाए और इस तरह की गुफ्तगू करके लोगों को महसूस करें और खूब खुशियां मनाएं कि आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। और निदा और फायदा जो है वो महजूज को तुम उनको कसरे खबासत में कर रहे हो कि खलीफा के कंधे पे चढ़कर उसका लफंगा साला औरतों से रेप कर बंदे के दिल में रहम आ जाता है, मगर मैं तो समझता हूँ कि आप अगर आप महमूदी होते तो कभी भी ये बात ना उस करते। बच्ची की हालत देखे, वो खौफ से कांप रही है, या उसके बच्ची की हालत हालात देखे, और उसकी बच्ची की बजाय हालत क्या देखे, डॉक्टर से तुम्हारे इलाज खलीफा की करवाने हालत देखे के जो उसको आप कह रहा है उसको तरगीब तुम्हारे दे रहे हैं खिलाफ कि ये निजाम जी जमात ऐसे हरकत में वाक़यात आएगा, हुए मैं हैं। कुछ नहीं करूंगा। अदालत कह रही है कि तुम्हारे नहीं हुए, खलीफा आप की कह हालत रहे ना हैं कि नहीं देखे हुए बेचारा, हैं। कितना बेबस है आप एक लड़की उस के अदालत से सामने। बढ़ के कोई बड़ी अदालत है। वो कह रहा है कि खलीफा को कि तुम जन मरीद हो, वो निदा कह रही है उसको।
हाँ, और तो तुम ये लफंगे खोते अदालत साले कह तुम पर रही है हुकूमत कि कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल इसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप कुछ कह सकते हैं इस बारे में? कुछ नहीं ऐसा होगा। हाँ, तो वो खलीफा बताए, ने वो ये भी तो तो नहीं, सच्चाई तो खलीफा बताए तो ना कह कि रहा है अदालत तुमने ने खुद क्या पेश फैसले किया था, किए वो हैं। तो कह नहीं रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो कह रहा है तुमने खुद पेश किया था। यानी खलीफा को पता था जना हो रहा है, लेकिन उसका अगर मतलब करें है वो जना अपनी मुकदमे का मर्जी कह से रहे कर रहे हैं, हो, खुद फिर पेश ठीक है। किया है मुकदमे के लिए अपने आप को, तो मुकदमा भुगतो अब। हाँ, तो वो खलीफा जी यही तो कह रहे हैं, तुमने खुद पेश किया था, मेरे पास हाँ, क्यों कह रही हो? शर्म को नाम की चीज जना कोई तो है ही मेरी नहीं, मर्जी से बात हो को रहा है। बिगाड़ के जानबूझ के लोगों को महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए तो तुम कहा कि आपको मिर्जाई कोई तो तल्लुक महसूस नहीं नहीं है, होते। आप ऐसे मिर्जाई कहते हैं हम बेवकूफों की अपनी तरह जान रिकॉर्डिंग माल लगा के इज्जत को कुछ और सुनाना ज्यादा चाह रहे कुर्बान हैं। करेंगे। वाह मिर्जाइयो, तुम अपनी खबासत पे भी तुम्हें कितना फख्र है। जी, अदालत ने कब कहा कि कुछ नहीं हुआ था? दिखा दें हमें जरा, अदालत ने कब कहा था, उसका सबूत पेश कर दें। वो भाग गया मिर्जाई, काफी हो गई। मैं तो इतनी देर बैठा रहा है, मैं हैरान हूँ कि इतनी देर बैठा रहा है वो। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਅੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ हाँ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ